لا إله إلا الله. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the compassionate, the merciful. Respected galaxy of great people, important citizens of this city who are sitting on the stage, and dear listeners, brothers and sisters, Assalamu alaikum. May peace be upon you. It's a very memorable day for me. It is my first visit to this city, and I'm very happy that Jamaat-e-Islami Hind, the Indian Jamaat-e-Islami, which is completing 75 years of its struggle to promote humanity and morality, has organized this function. There are two things about which I will be speaking, we will be thinking, we will be deciding. The invitation says that first of all, humanity. By the grace of God, we are all human beings. Whether we are Hindus, Muslims, Christians, Indians, Chinese, whatever we may be, whichever religion we follow, and to whichever country we belong, we are human beings. And human beings, they are the greatest creation of God. God has created sun and moon and mountains and so many other things. But all these things have been created for human beings. Human beings, they are the heroes of this universe. And we human beings, we have made into males and females. And males and females, they are equal. For example, we find that our earth is about 25,000 miles in square. Our earth is moving around its axis at a speed of 1041 miles. Our earth is making a circle of the sun in 1 year. It is not exactly 365 days, 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45.51 seconds. God has created this earth for us, and here I am reminded of a verse of the Holy Quran, the last message of God which was given to humanity. It says, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. O human beings, God is not calling only Muslims. All human beings are being addressed. O human beings, we have created you from one man and woman. In the beginning, there was a male and a female, and we are the children of that one man and one female, that first couple. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Then we made you into different communities, different tribes, and different people. Then who is greater? Which person is greater? Inna akramakum indallahi atqakum. The greater person among you is one who is more God-fearing, who is more pious, who fears God, who thinks about human beings, who serves the human beings in this way. There is neither any greater person nor any lower person. All of us are equal. And our Indian Constitution also speaks about equality. And more than that, it speaks about liberty. God has given us liberty. Liberty is something which has been bestowed. Acha. The brother is requesting that I should speak in Urdu. I will speak in simple Urdu और हिंदी. मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हम सब के सब इंसान हैं, मनुष्य हैं. हमारी जाति, असल जाति मनुष्य की जाति है, इंसान की जाति है. मैं ये बता रहा था कि ये ज़मीन इतनी बड़ी है, 25,000 माइल का एक स्क्वायर है. 71% समुद्र हैं इस पर,
और फिर 29% ज़मीन है, भूमि है जिस पे हम रहते हैं। लेकिन न ज़मीन देखती है न सुनती है, न सूरज देखता है न सुनता है। इंसान को ईश्वर ने, मालिक ने, जिसे हम कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई दिवम कहता है, रियलिटी एक ही है। वही हमारा मालिक है, वही हमारा क्रिएटर, पैदा करने वाला है, वही हमको पालने पोसने वाला है, वही हमारे लिए बारिश बरसाता है। हम सब उसी के बंदे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे मुस्लिम बने, हम अच्छे हिंदू बने, हम अच्छे क्रिश्चियन बने, और शॉर्ट में ये है कि हम अच्छे इंसान बने। अब इस बात पर गौर कीजिए कि मॉरलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, अखलाक क्या है। इंसान को अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसान को दूसरे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बहुत से मार्गदर्शन करने वाले गाइड्स आए, प्रॉफिट्स आए, मैसेंजर्स आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, और उन सब का मैसेज क्या था, उन सब का पैगाम संदेश क्या था? तुम ईश्वर के आगे झुको, ईश्वर के छोड़कर किसी और के आगे मत झुको। हम जानवरों को देखते हैं, क्या कोई कुत्ता किसी कुत्ते के आगे झुकता है? नहीं झुकता है। क्या कोई गाय किसी गाय के आगे झुकती है? नहीं झुकती है। क्या कोई कीड़ा किसी दूसरे कीड़े के आगे झुकता है? नहीं झुकता है। इंसान दूसरे के आगे क्यों झुके? हम सब के सब बराबर हैं, हम सब के सब मनुष्य हैं, और हम सब के सब इंसान हैं। अब देखिए, कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई चाइना में पैदा हुआ, कोई ब्राज़ील में पैदा हुआ, इससे कुछ अंतर नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। हम कहाँ भी पैदा हों, हम मर्द हों या औरत हों, मेल हों या फीमेल हों, हम सब के सब इंसान हैं। अच्छा इंसान कौन है? इस सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर के आखिरी दूत, द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने कहा था कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों की भलाई का काम करता है, लोगों के फ़ायदे का काम करता है। लेकिन आज हम देखते हैं जंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, कश्मकश होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। अभी हमने देखा पिछले साल इसी महीने में 24 तारीख को रशिया, इतना पावरफुल कंट्री है, उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और 1 साल से जंग हो रही है। उसकी वजह से जहाज़ों को चलने में मुश्किल हो रही है, खाने का ऑयल जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, गेहूं की कीमत बढ़ गई है, और लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हम कैसे इंसान हैं? जानवर इस तरह लड़ते नहीं हैं, जानवर कोई फौज नहीं बनाते हैं, जानवर वार क्राइम्स नहीं करते हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। कभी इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं, कभी चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट होती है, कभी रशिया और अमेरिका, इनमें कोल्ड वार होती है। इससे नुकसान होता है आपको, हमको। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात पर ज़रा सा ध्यान दीजिए कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना महान है। वहाँ हिमालय की समिट से, माउंट एवरेस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक साउथ में, इधर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से लेकर कच्छ की खाड़ियों तक 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना बड़ा है हमारा देश। नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3200 किलोमीटर्स, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 3300 किलोमीटर्स, इतना बड़ा है हमारा देश। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, कश्मीरी है। फिर उधर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी भाषाएं हैं। हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारे रंग अलग अलग हैं। कोई द्राविड़ है, कोई आर्य है, कोई कभी और किसी कंट्री से आया है, कोई अफ़गानिस्तान से आया है। ये सब काफ़िले आते रहे, और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब हिंदुस्तान की, भारत देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल कर रहें, हम कम्युनल नहीं हो जाएं, हम छोटे तरीके से नहीं सोचें। मुझे एक बात याद आती है,
इन द एब्सेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज डिस्ट्रक्टिव। अगर हमारा सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, हम सिर्फ पैसा कमा लें, हम बहुत ज़्यादा खाने पीने लगें, लेकिन अगर हम अपने गरीब भाइयों का ख्याल नहीं करते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको ऊंचा उठाते नहीं हैं, गरीबों का ख्याल नहीं करते हैं, बीमारों का ख्याल नहीं करते हैं, तो हम इंसान नहीं हैं। हम एक अच्छा भारतवर्ष बनाने में असफल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं। जमात इस्लामी जो पहले तो 1941 में कायम हुई, स्थापित हुई, जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, फिर 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो जमात इस्लामी को दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया। जमात इस्लामी का मैसेज यही है, क्या? ह्यूमैनिटी, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम सब लोगों को मिलकर हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक अच्छा देश बनाना है, एक तरक्की वाला देश बनाना है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, अभी कोविड-19 आया था, 2 साल तक हम तकलीफ़ में रहे, लेकिन अडानी का नाम हम लेते हैं, कितने लोगों ने अडानी के पास अपना पैसा लगाया, भरोसा किया। हम लोग सब परेशान थे, कोविड की वजह से हम बीमार थे, हम मर रहे थे, लाशों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान नहीं थे, लाशों को जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अडानी की जो वेल्थ है वो रोज़ाना 600 करोड़ बढ़ रही थी। लेकिन एक धोखा था। हमारे देश में इतने बड़े बड़े धोखे क्यों होते हैं? ये हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की बेईमानी होने नहीं दे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, 20-30 करोड़ लोगों का पैसा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा उसके पास डिपॉजिट है, लेकिन अडानी को दे दिया गया, उसकी अब वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो मेरे भाइयों और बहनों, और मैं जो बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल्स, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो बैठे हैं, उनसे भी कहूँगा कि हमको हर बेईमानी का मुकाबला करना है। हम सब लोगों को कम्युनल नहीं होना है। हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, ईश्वर को नहीं मानने वाले हों, नास्तिक हों, बहरहाल हम सब के सब हिंदुस्तानी हैं। अब देखिए, इंडिया की आबादी, पॉपुलेशन 144 करोड़ हो गई है। चाइना की आबादी भी इस वक्त 144 करोड़ है। चाइना का पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन और भी बढ़ेगा। 25 साल के बाद इंडिया का पॉपुलेशन 156 से 157 करोड़ हो जाएगा। इन सब लोगों को जॉब्स देना, एम्प्लॉयमेंट देना, इनकी एजुकेशन का प्रबंध करना, इसमें हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मॉरलिटी चाहिए। सिर्फ मैं ही खा जाऊँ, मैं पूरी दौलत पर कब्ज़ा कर लूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मॉरलिटी के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी अब तमाम देशवासियों के सामने ये मैसेज भी देती है कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है वो आज़माने के लिए दिया है। हमारा एक एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। हम अपने सारे इंसानी भाइयों से मोहब्बत करते हैं, नहीं करते हैं? हम हमारी बहनों का, माँओं का एहतराम करते हैं या नहीं? उनको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं? हम गरीबों के लिए क्या करते हैं? हम बीमारों के लिए क्या करते हैं? हम अनएजुकेटेड लोगों के लिए क्या करते हैं? इस देश को महान बनाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहें, नफ़रत नहीं हो, घृणा नहीं हो, किसी को मारा नहीं जाए, किसी को ख़त्म नहीं किया जाए। जमात इस्लामी 75 ईयर्स से यही मैसेज सब लोगों के सामने दे रही है। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि मैं अपने जीवन में ये पहली बार यहाँ पर आया हूँ, अनंतपुर में, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है। 3-4 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और इतने बुद्धिजीवी यहाँ फॉर्मर चेयरमैन हैं, म्यूनसिपल चेयरमैन हैं, बहुत से लोग हैं। और यहाँ हमारे बिशप साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे स्वामी जी तशरीफ़ लाए हैं। और हम सब का मैसेज यही है, हम एक हैं, हमें एक रहना चाहिए, हमें मॉरली ऊंचा बनना चाहिए, हमें अच्छे इंसान, अच्छे भारतीय बनना चाहिए। जमात इस्लामी का मैसेज यही है। और आज ये जो भव्य सभा हो रही है, इसमें हम यही मैसेज लेकर जाएंगे। मैं उसी ईश्वर के आगे अपने हाथ फैलाता हूँ, उससे दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर,
हे मालिक, हे प्रभु, हे अल्लाह, हम सबको सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जो तुझको पसंद है, और हमें हर तरह की बुराइयों से बचा, और हमें इस देश भारतवर्ष को बेहतरीन देश, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल कंट्री बनाने की शक्ति अता कर। और हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे लीडर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे प्रोफेशनल्स, इन सब पर अपनी रहमत का साया अता फरमा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और ये मैसेज आपको देकर जा रहे हैं कि शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में हो, और धरती की जो कामयाबी है, सफलता है, वो मुक्ति जो है वो प्रीत में है। तो आइए हम सब के सब मिलकर हिंदुस्तान को एक सफल देश, एक बेस्ट डेमोक्रेसी, एक ह्यूमैनिटी का बेस्ट सेंटर बनाने की कोशिश करें। ईश्वर खुदा हमारी मदद करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।